of the Lord. और मुझे मालूम है कि आप सब परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में पा रहे हैं। And the Bible says, the Lord has promised me that wherever you go, I will watch over your life. और बाइबल का ये वायदा है कि जहाँ कहीं भी तू जाएगा मैं तेरे जीवन को बड़ी नजदीकता से देखता रहूंगा। And he said, until unless I will not bring you back to this land, I will be with you forever. और परमेश्वर ने कहा कि जब तक मैं तेरे उस देश के क्षेत्र में ना लेके आऊं मैं निश्चय तेरे साथ बना रहूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. God was so faithful with the promises, and surely he was there with Jacob, and he increased him and he blessed him. Hallelujah. परमेश्वर इतना विश्वास के योग्य था कि उसने निश्चय ही याकूब को आशीष दिया और उसे बढ़ा दिया। Amen. आमीन। But now I'm going to take to a particular scripture where Jacob is returning to his homeland. और मैं एक खास वचन को लूंगा जिसके द्वारा याकूब अपने परिजनों यानी परिवार के बीच में वो वापस जाता है। He is coming back to his father's house. और अपने पिता के घर की ओर वो रवाना होता है। Hallelujah. आमीन। God has blessed him so much. परमेश्वर ने उसे इतना ज्यादा आशीष दे दिया। Wherever he laid his hands, those areas were blessed. हालेलुया। और जिस भी क्षेत्रों पे उसने अपने हाथ को रख दिया उस क्षेत्रों पे उसका आशीष प्रभु का आ गया। Praise the Lord. आमीन। Now he is returning back to his hometown. और अब वो अपने देश अपने पिता के घर वापस आ रहा है। In the same manner. उसी तरह से मेरे प्रियो Now remember. इस बात को याद रखिए। Hallelujah. हालेलुया। I believe through this word of God that we all are going to return to the house of God. हम विश्वास करते हैं परमेश्वर के इस वचन के द्वारा कि हम सब परमेश्वर के भवन की ओर आ रहे हैं वापस। Hallelujah. आमीन। Our journey has begun. हमारी यात्रा अब शुरू हो गई है। Israel is coming back to his own hometown. हालेलुया। इस्राएल वो अपने सचमुच सरजमीन पे वापस आ रहा है। When he started his journey with the name Jacob. और जब उसने अपनी यात्रा शुरू की तब तो उसका नाम याकूब था। Hallelujah. हालेलुया। He's coming back. और वो वापस आ रहा है। He's coming back with his own family. और वो अपने संपूर्ण परिवार के साथ अपने घर वापस आ रहा He's है। coming back with all the cattle which he has. वो सारे अपने भेड़ बकरियों गाय बैलों ऊंटों के साथ घर वापस आ रहा है। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Yes, my Lord. Amen. आमीन। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Praise God. Praise the Lord. Praise the Lord, GRPC family. Yes, praise the Lord. Very soon we are returning to the house of the Lord. बहुत जल्द हम परमेश्वर के भवन में सचमुच वापस आ रहे हैं। Yes, we are returning to the house of the निश्चय ही हम वापस आ रहे हैं। We are returning to his house. हम उनके भवन में वापस आ रहे So हैं। that we will come before him and cry before him and we love him and we will be with him forever. हम उनके सामने आके हम अपने आंसू को बहा के उनके प्रेम को पाकर और निरंतर उनके साथ बने रहेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. आमीन। Now I'm going to take you to the Genesis chapter 32 and from verse 6 onwards. और मैं आपको अपने साथ उत्पत्ति की पुस्तक उसके 32 अध्याय के 6 वचन के ओर ले जाना चाहता हूँ। Now Jacob has already planned that he has to go back to his hometown. यहाँ पर याकूब ने निर्णय कर लिया है कि मैं अब अपने पिता के घर यानी अपनी सरजमीन पे मैं वापस जाऊंगा। Amen. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Then he sent messengers to his brother Esau and he told him that he is coming to his hometown. और यहाँ पर याकूब अपने भाई इसाव को सचमुच अपने संदेश वाहक के द्वारा ये संदेश भिजवाता है कि मैं अपने घर पिता के घर वापस आ रहा हूँ। The Bible says in verse 6, then the messenger returned to Jacob saying, we came to your brother Esau and he is also coming to meet you with 400 men are there with him. यहाँ पर संदेश वाहक आकर याकूब को कहता है कि सचमुच मैं तो आ ही रहा हूँ परंतु साथ में आपका भाई जो एसाव है वो भी आपसे मिलने आ रहा है परंतु 400 लोगों को लेके आ रहा है। Hallelujah. Praise the Lord. Now listen.
बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। Most probably many of you don't know the story of Jacob. Hallelujah. मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग याकूब की संपूर्ण कहानी को नहीं जानते। He left his house by taking the birthright of Esau. आपको नहीं मालूम ये चीज कि वो उसने जब अपने माता पिता के घर को छोड़ा था तो एसाव जो उसका बड़ा भाई था उसके जन्म के अधिकार को लेकर याकूब निकला था। He deceived his elder brother. और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि याकूब ने अपने बड़े भाई एसाव को धोखा दिया था। Hallelujah. Now हालेलुया। he's returning back. और अब वो वापस अपने उस घर पे आ रहा है And he has a fear from his own brother. और उसके अंदर एक डर है अपने बड़े भाई एसाव से। Maybe that fear says that maybe my brother will kill me. उसके अंदर ये डर है कि हो सकता है मेरा बड़ा भाई एसाव मुझे कत्ल कर दे। Amen. आमीन Hallelujah. आमीन। You know, he's returning to that place because God told him to return to that place. अब याकूब अपने माता पिता के घर इसलिए वापस आ रहा है कि परमेश्वर ने कहा है कि मैं तुझे वापस लेके आऊंगा। Now what happened when he heard that Esau is coming with 400 people, so he was afraid. और आपको मालूम मेरे प्रियो याकूब को जब ये मालूम चलता है कि 400 लोग लेकर उसका भाई एसाव आ रहा है तो वो तो सचमुच निश्चय ही डर जाता है। Amen. आमीन। The word of God says, परमेश्वर का वचन यूं कहता है verse 7, Genesis chapter 32 and verse 7. उत्पत्ति की उसके 32 अध्याय के 7वें वचन में यूं लिखा है So Jacob was greatly afraid वो बहुत ज्यादा डर गया and distressed, और संकट में आ गया and he divided the people और अपने लोगों को बांटने लगा that were there with him and the flocks and herds and camels into 2 companies. और उसने क्या किया कि 2 हिस्सों में अपने गाय बैलों बकरियां ऊंटों और लोगों को 2 हिस्सों में बांट दिया। And now in that fear, और उस डर के मारे in verse 8 he says, 8वें वचन में वो यूं कहता है if Esau come to the one company and attack it, then the another company which is left will escape. यहाँ पे क्या कहता है याकूब कि अगर मेरा भाई ईसाव एक तरफ आके एक टुकड़ियों के ऊपर अगर आक्रमण करेगा तो जब तक जो मेरे दूसरे लोग और भेड़ बकरियां हैं वो अपने प्राण को बचा के भाग जाएंगी। You know who is thinking? ये सारी बात कौन सोच रहा है? Who is making plans? ये सारी योजनाएं अपने मस्तिष्क में कौन बना रहा है? He is the one who received the dream. ये वही व्यक्ति है जो स्वप्न देखता है। He is the one who has experienced the presence. ये वही व्यक्ति है जो परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में पाता है। He is the one who has already experienced the power of God. ये वही व्यक्ति है जो परमेश्वर की सामर्थ को अपने जीवन में पाता है। He is the same person whom God has promised him that I will increase you and multiply you. ये वही व्यक्ति है जिससे परमेश्वर ये वायदा करता है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा और तेरी आशीषों को भी बढ़ाऊंगा। He is the same person whom God has shown favor and favor. ये वही व्यक्ति है जिसके ऊपर परमेश्वर ने अपनी कृपा पे कृपा दे दी है। Hallelujah. हालेलुया। But the Bible says, लेकिन बाइबल की वचन यूं कहते हैं when he heard that his brother is coming with 400 people, जब उसको ये 400 men, समाचार मिलता है कि उसका भाई 400 लोगों को लेके आता है he was greatly afraid. वो बहुत ज्यादा डर जाता है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. I was हालेलुया। finding out the word afraid, meaning of that word afraid. और जो डरने का जो शब्द है उसका मैं खास अर्थ निकाल रहा था। Hallelujah. हालेलुया Amen. हालेलुया। You know, sometimes we also afraid. आपको मालूम मेरे प्रियो कई बार हम लोग भी डर जाते हैं। Amen. आमीन। Now this fear has not came by the devil, okay? याद रखिए मेरे प्रियो याकूब के जीवन में ये डर किसी शैतान के द्वारा नहीं था। It is his own fear. वो उसका अपना स्वयं का डर था। It is the fear which he has created. ये वो डर था जिसको उसने स्वयं अपने जीवन में तैयार किया था। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। When I was taking the meaning, जब मैं इस अर्थ को देख रहा था डर के अर्थ को it says a fear which you feel. एक ऐसा डर जो आप अपने शरीर में महसूस करते हैं Or anxiety. और ऐसी बेचैनी और संकट। For example, उदाहरण के तौर पर I am afraid of dogs. जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई मैं कुत्तों से डरता हूँ। Amen. Okay?
हालेलुया। Or you can say she was afraid because he would be angry. आप ये भी कह सकते हैं उदाहरण के तौर पे कि वो इस बात से डर गई क्योंकि उसे लगा कि वो जो सामने वाला व्यक्ति है उससे नाराज हो जाएगा। Amen. आमीन। I am often afraid to go out into the street because of coronavirus. आप ये भी सोचते होंगे कि मैं हमेशा कई बार डर जाता हूँ बाहर निकलने से, रोड पे जाने से, क्योंकि ये महामारी की आत्मा वहाँ पे है। Amen. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord। Now this fear is not created by the devil, but this fear has been created by us. याद रखिए मेरे प्रियो, इस तरह का डर कोई शैतान के द्वारा हमारे जीवन में नहीं आता है, ये स्वयं आपके द्वारा आता है। For God has not given you the spirit of fear, but spirit of power and love. क्योंकि परमेश्वर ने आपको डर की आत्मा नहीं दी है, वरन प्रेम और सामर्थ की आत्मा दी है। I'm talking to the church today. मैं आज आप लोगों से यानी कलीसिया से बात कर रहा हूँ। I'm talking to the people who believe in the Lord Jesus. मैं उन व्यक्ति से बात कर रहा हूँ जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखते That's हैं। why whenever the Lord appeared to the people, He said, "Do not be afraid." इसी से प्रभु यीशु जब भी अपने लोगों के सामने प्रकट होते थे तो वो कहते थे कि मत डर। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। But the Bible says Jacob was afraid. लेकिन बाइबल हमें इस बात का खुलासा देती है कि याकूब डरा हुआ था Because he heard a news. क्योंकि उसको एक समाचार मिला। And the Bible also says he was distressed. और बाइबल ये कहती है कि वो तो संकट में पड़ गया। Amen. आमीन। If you see the meaning of distress, it says suffering from extreme anxiety. जिसका ये अर्थ है कि डर, बेचैनी, बहुत तायत का आपके जीवन में। I was so much disturbed about the economy which is losing. उदाहरण के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि मैं बहुत ज्यादा डर गया हूँ, संकट में हूँ कि अब इस देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा। Amen. आमीन। I was distressed because of the news of some death or something gone worst. मैं संकट में इसलिए पड़ गया, डर में इसलिए आ गया कि किसी की मृत्यु हो गई है। Amen. आमीन। Unhappiness, अप्रसन्नता, affliction, एक दबाव, anguish. एक बेचैनी। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. God appeared to him, परमेश्वर उसके सामने आता है, but लेकिन because of some news, परंतु कुछ समाचार की वजह से he was afraid. याकूब डर जाता है, He was distressed. वो संकट में आ जाता है। Hallelujah. हालेलुया। Now this fear, मेरे प्रियो, ये डर, this distress ये संकट can divide your thoughts. आपकी सोच को दो हिस्सों में कर देगा। Amen. आमीन। And this fear and ये this डर and this distress had divided the thoughts of Jacob, and he divided his companies into two ways, two और divisions. याकूब के अंदर जो ये डर था, जो ये संकट था, उसकी सोच के द्वारा उसने अपनी सारी चीजों को दो हिस्सों में बांट दिया। Hallelujah. आमीन। In that fear that if his brother will come and attack one company, that another company will escape. वो ये सोचने लगा कि अगर मेरा भाई एक दल के ऊपर आक्रमण करेगा तो मेरा दूसरा दल भाग जाएगा, Hallelujah. बचा लिया जाएगा। You know why I'm preaching this? आपको मालूम आज मैं ये आपसे क्यों प्रचार कर रहा हूँ? Hallelujah. आमीन। Maybe you are going through this fear. हो सकता है इस तरह के डर से आप गुजर रहे हो, Maybe you are going through this distress. इस तरह के संकट से आप गुजर रहे हो। Maybe you know the Lord Jesus is real. आपको ये भी मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह सत्य है। Hallelujah. हालेलुया। Maybe you have seen the power of the Lord. हो सकता है कि आपने परमेश्वर की सामर्थ को भी देखा Maybe you है। have heard the testimonies. हो सकता है कि आपने गवाहियों को भी सुना है। Maybe you saw many miracles. हो सकता है कि आपने अपने जीवन में बहुत चमत्कारों को देखा है, But still you are in fear. लेकिन फिर भी आप डर में मौजूद हैं। You are feeling fear every day. आपके अंदर वो डर हर दिन आता है। What will happen tomorrow? यही सोचते हैं कि कल क्या होगा, What will happen to my office? मेरे कार्य क्षेत्र के स्थान पे क्या होगा, What will happen to my business? मेरे व्यवसाय में क्या होगा। Hallelujah. हालेलुया। Whether I will get my business or not.
क्या मुझे सचमुच वो व्यवसाय का जो मार्ग मेरे लिए खुलेगा या नहीं? Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So he divided his whole family into two, and then he says one family go ahead and another family go ahead. Hallelujah. और याकूब ने क्या किया? अपने परिवारों को दो हिस्से में बांट दिया और उनको दो दिशाओं की तरफ रवाना कर दिया। Hallelujah. हालेलुया। That particular fear and that particular anguish or anxiety has created two directions. Okay. उसके अंदर का जो डर और संकट था, उसके जीवन में दो मार्गों को उसके जीवन में निकाल के आ जाता है। Hallelujah. हालेलुया। If I will go into this way, if I am not saved in this way, I will take that another route. उसके दिमाग में ये आता है कि अगर इस तरह से अगर मैं नहीं बचाया जाता तो दूसरे मार्ग के द्वारा तो मैं निश्चय ही बच जाऊंगा। That means through that fear you are opening your own door. जिसका ये अर्थ है कि अगर आपके जीवन में वो डर आ गया है तो आप अपने जीवन में दो रास्तों को खोलते हैं। You are opening doors. आप दरवाजों को खोलते हैं। You are applying your mind to operate. आप अपने दिमाग को इस तरह से कार्य करते हैं कि वो फिर आपकी सोच के अनुसार कार्य करे। Faith never moves through your mind, but faith will move through the word of the living God. याद रखिए, आपके जीवन का विश्वास आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग, आपके सोच से नहीं चलेगा, वरन स्वयं परमेश्वर के वचन से चलेगा। Faith always moves according to the word of the living God. याद रखिए, विश्वास स्वयं और सिर्फ जीवित परमेश्वर के वचनों से चलता है। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. Hallelujah. Sometimes people move in fear कई बार लोग सचमुच उस डर में चलते हैं because you are hearing the news of the world. क्योंकि आप संसार के समाचारों को सुनते हैं। I never hear it, okay? मैं तो बिल्कुल नहीं सुनता Because I don't like it. क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। Because I knew if I will hear this news, fear will come into my life. क्योंकि मुझे मालूम है इन समाचारों को अगर मैं सुनूंगा तो डर की आत्मा मेरे अंदर आएगी। Hallelujah. I don't want to operate in fear. मैं सचमुच डर में नहीं चलना चाहता। Amen. But I want to operate in the power of the Holy Ghost. लेकिन मैं चलना चाहता हूँ पवित्र आत्मा की सामर्थ और पराक्रम में। Oh, Shinda Rabba Rikha Baraba. Now listen, he is going through fear and distress. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, वो सचमुच डर और संकट से होके गुजर रहा है। And then he started praying. और फिर उसके बाद वो प्रार्थना करने लगता Now है। listen what prayer he is doing. अब आप देखिए कि वो क्या प्रार्थना करता है। He said, "Oh God, my father Abraham, oh God, my father Isaac." और वो कहता है, हे यहोवा, मेरे दादा अब्राहम के परमेश्वर, The Lord who said to me, "Return to your country." और हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, जो तू मुझसे कहता है अपने देश और अपनी जन्मभूमि लौट जा। And to your family I will deal well with you. और तू अपने परिवार में लौट जा, मैं तेरे साथ भला अच्छा करूंगा। Verse 10 says, और 10वें वचन में यूं लिखा है, I am not worthy of the least of all the mercies and all the truth. और वो कहता है 10वें वचन में कि मैं किसी भी तेरी करुणा और सच्चाई के लायक नहीं हूँ, Which you have shown your servant. जो तूने अपने दास को मुझे दिखाया है। For I have crossed over the Jordan with my staff, and now I have become two companies. और मैंने सचमुच यरदन नदी को अपनी छड़ी से उसे पार करके मैं आया हूँ और अब मैंने दो टुकड़ियां बना ली हैं। Amen. आमीन। Hallelujah. आमीन। Now in verse 11. और 11वें वचन में यूं लिखा है, Now he says, Deliver me, O Lord. वो कहता है, याकूब कहता है, हे प्रभु मुझे छुटकारा दे। Deliver me, O Lord, from the hand of my brother and from the hand of Esau. वो कहता है कि मेरे भाई ईसाव से मुझे बचा ले, मुझे छुटकारा दे। For I fear him, क्योंकि मुझे उससे डर लगता है, lest he come and attack me and the mother with the children. ऐसा ना हो कि वो आके मुझ पे आक्रमण कर दे, अपने बच्चों सहित और अपने बच्चों की पत्नी यानी बच्चों की माता के सहित। Now his whole prayer, when you will see, he's asking for a deliverance. जिसका ये अर्थ है कि अगर आप याकूब के संपूर्ण प्रार्थना को सुनते हैं तो आपको ये लगता है कि वो सचमुच छुटकारे को मांग रहा है। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। So while I was reading the whole scripture, I find out that
God is hearing the prayer but He's not answering it. और जब मैं सारे वचनों को जब पढ़ रहा था तो मुझे ये समझ में आ रहा था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थनाओं को तो सुन रहे हैं परंतु उत्तर नहीं दे रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. He's praying for deliverance. वो क्या प्रार्थना कर रहा है? मुझे छुटकारा दिला दे। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। Why he's praying for deliverance? Because he was going in fear. वो इसलिए छुटकारे को मांग रहा है क्योंकि वो डर से गुजर रहा है। Now let's see what God has done, okay? अब आप देखिए कि यहाँ पर परमेश्वर क्या करते हैं। Whether the Lord has delivered him or whether the Lord has done something else. अब इसे समझना जरूरी है कि यहाँ पर परमेश्वर ने क्या उसको छुटकारा दिया या कुछ और किया। Praise the Lord. Praise the Lord. Sometimes we also go through fear. कई बार हम भी डर से गुजरते हैं। We also go through distress. कई बार हम भी संकट से गुजरते हैं। Hallelujah. आमीन। And we pray for deliverance. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु छुटकारा दिला दे। Is it right to pray for the deliverance? क्या ये सही है कि डर में आप छुटकारे के लिए प्रार्थना करें? Today God is going to give you a big revelation आज परमेश्वर आपको एक बड़ा प्रकाशन देंगे through these wonderful scriptures. इस सुंदर वचन के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। We are not the people to walk in fear, but we are the people to walk in faith. याद रखिए हम लोग वो व्यक्ति नहीं है जो डर में चले, वरन हम वो व्यक्ति हैं जो विश्वास में चलेंगे। And God is watching Jacob and he's seeing that how much he is in fear. Amen. और परमेश्वर बड़े ध्यान से याकूब को देखते हैं और समझते हैं कि ये कितना डर में है। Hallelujah. Hallelujah. Because God has given him a promise that I will watch over you. क्योंकि परमेश्वर ने तो उसको एक वायदा दिया है कि मैं अपनी नजर तुझ पे रखूंगा। And right now he is watching over your life. मेरे प्रियो, इसी वक्त परमेश्वर अपनी नजर आपके ऊपर रखे हैं। Amen. आमीन। And on that particular day, God is also watching over the life of Jacob. और उस खास दिन पर परमेश्वर याकूब के जीवन को देख रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. He saw that how he went into fear and how he went into distress and he made two companies. और परमेश्वर ये देख रहे हैं कैसे याकूब इतने डर में चला गया, कैसे उसने अपने परिवार, अपनी सारी जायदादों को दो हिस्सों में बांट दिया। Because of the fear from his brother. इतना डर गया अपने भाई से कि उसने सब कुछ दो हिस्सों में बांट दिया। Praise the दो Lord. दल बना दिया। And he started praying to God. और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, मुझे छुटकारा दिला दे। Oh Lord Jesus. हे प्रभु यीशु, Oh, deliver me from the hand of my brother. मुझे मेरे भाई के हाथों से छुटकारा दिला दे। And God is hearing the prayers. और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। And the Bible says, बाइबल यूं कहती है, the angel of the Lord came down. परमेश्वर का स्वर्गदूत नीचे उतर आया। And in verse 26, आइए 26 वचन में क्या लिखा है उसे देखते हैं। you know what happened? And the angel of the Lord came and he touched Jacob, okay? आपको मालूम ये हालत हुई कि स्वर्ग से परमेश्वर का स्वर्गदूत निकलकर उतर आया पृथ्वी पर और याकूब को स्पर्श कर देता है। Amen. आमीन। And the Bible says in verse 26, and he said, let me go for the daybreak, but he said, I will not let you go unless you bless me. और यहाँ पे स्वर्गदूत क्या कहता है कि भाई अब तो सवेरा होने चला है, मुझे जाने दे। Amen. Now listen. Jacob is wrestling with God. यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात ये होती है कि याकूब क्या करता है, परमेश्वर के स्वर्गदूत के साथ कुश्ती लड़ता है। Amen. Now listen how he is doing this. This is the way. This is the wrestling. This is the way. इस तरह से कुश्ती लड़ता है। Hallelujah. Praise the Lord. Amen. This is the way. Hallelujah. This is the way. Hallelujah. Amen. Hallelujah. How many of you want that God must wrestle with you like कितने this? लोग चाहते हैं कि स्वयं परमेश्वर आके आपके साथ आके कुश्ती लड़े? Now listen. Now what God says, you know, the अब angel. बड़े ध्यान से सुनिएगा कि परमेश्वर का जो स्वर्गदूत है, जो स्वयं परमेश्वर है, वो क्या कहता है? Allow me to go. वो कहता है कि याकूब मुझे आज्ञा दो, मुझे जाना है। Wow. हालेलुया। Praise the Lord. Praise the He Lord। says to Jacob, for the day breaks. Let me go. मुझे जाने दे. और ये कहता है कि भाई सवेरा होने वाला है, याकूब मुझे जाने दे। Now tell me, GRPC family, who is powerful right now here? अब तो आपको ये समझना होगा मेरे प्रिय GRPC परिवार के लोग कि यहाँ पे ताकतवर कौन है? Is the
angel of the Lord or is Jacob क्या itself? स्वयं परमेश्वर का स्वर्गदूत या स्वयं याकूब? Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द I लॉर्ड। know it. The time when he was wrestling, the Lord was imparting all his power Hallelujah. upon Jacob. Amen. मुझे मालूम है कि जिस समय याकूब परमेश्वर से कुश्ती लड़ रहा है तो स्वयं परमेश्वर ने अपने सामर्थ और पराक्रम को उसके ऊपर उंडेल दिया, That means he touched him so powerfully. जिसका ये अर्थ है कि परमेश्वर ने याकूब को इतने सामर्थ तरीके से स्पर्श कर लिया। Amen. आमीन। And God has released his anointing of power over his life. और परमेश्वर ने अपने अभिषेक और सामर्थ को उसके जीवन में भेज दिया। And Jacob caught him. और क्या करता है याकूब? तुरंत स्वर्गदूत को, उस प्रभु को पकड़ लेता है And he said, I will not let you go until you will bless me. और क्या बोलता है? मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, पहले मुझे आशीष दो। Hallelujah. Now listen, his language has changed. यहाँ पर याकूब के शब्द बदलते जा रहे हैं। And he said, I will not let you go unless you will not bless me. मैं तुझे तब तक जाने नहीं दूंगा जब तक कि तू मुझे आशीष नहीं देके जाएगा। That is the power of the Lord. Hallelujah. यही तो परमेश्वर का सामर्थ याकूब के जीवन में काम कर रहा है। That is the word of the power of God which came out of Jacob. I will not let you go until and unless you will bless me. यही तो परमेश्वर से मुख का निकला हुआ सामर्थ है कि याकूब ये कहने लगा कि मैं तुझे तब तक जाने ना दूंगा जब तक कि तू मुझे आशीष नहीं देगा। Now listen, बड़े ध्यान से सुनिए, he prayed for deliverance. प्रार्थना क्या करता है याकूब? हे प्रभु, मुझे मेरे भाई से छुटकारा दे दे। But लेकिन God is not interested in delivering him, but God is interested to touch his life. हालेलुया, परमेश्वर को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि उसको सचमुच छुटकारा दिलाए, वरन इस बात की फिक्र है कि मैं याकूब को स्पर्श कर लूं। And he said to him, what is your name? और यहाँ पर परमेश्वर यहाँ पे याकूब से पूछते हैं, तेरा नाम क्या है? He said, Jacob. वो कहता है, मेरा नाम याकूब है। And verse 28 says, और 28 वचन में यूं लिखा है, and he said, your name shall no longer be called Jacob. और यहाँ पे वो स्वर्गदूत यूं कहता है कि अब तेरा नाम याकूब ना रहेगा, Because your name means deceiver. क्योंकि तेरे नाम का अर्थ है धोखा देने वाला। Because through that word deceiver, that fear is coming into your life. क्योंकि तेरे नाम का जो अर्थ है, जिसका अर्थ है कि धोखा देने वाला, इसी से तेरे जीवन में वो डर बना है। Hallelujah. Hallelujah. Today I will take out the deceiving part from your life and I will fix a particular name in your life so that name stands that you have struggled with God. और वहाँ पे इसका ये अर्थ है कि परमेश्वर ये चाहता है कि मैं तेरे इस नाम को तेरे जीवन से निकाल दूं जो तुझे धोखा देता है। Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। But now your name shall be called Israel, for you have struggled with God and with men and have overcome it. और यहाँ पे वो स्वर्गदूत परमेश्वर यूं कहता है, अब से तेरा नाम इज़राइल होगा, क्योंकि तूने युद्ध किया सचमुच परमेश्वर और मनुष्य से और तू जयवंत है। Praise the तू Lord. जीत गया। That was a very powerful word. ये तो बड़ा सामर्थी वचन था। Praise the Lord. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Now listen, how your fear will go, आपका डर कैसे जाएगा? how this distress will go, आपका ये संकट कैसे जाएगा? by the power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के सामर्थ के By the द्वारा, power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के सामर्थ के By the द्वारा, power of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन, Amen. आमीन। Maybe God is thinking, हो सकता है परमेश्वर सोच रहे हो, oh Jacob, ओ याकूब, oh Jacob, याकूब, don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost? क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरा स्वयं का शरीर परमेश्वर का मंदिर है? Don't you know that your body is the temple of the Holy Ghost? क्या तुझे मालूम नहीं कि तेरा शरीर स्वयं परमेश्वर का मंदिर है? Hallelujah. हालेलुया, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। Church, कलीसिया, I want to tell you something. मुझे आपसे कुछ कहना है। Let us not walk in fear.
डर में ना चले, ना जिए। Praise the Lord. Praise the Lord. Because your body is the temple of the Holy Ghost. क्योंकि आपका शरीर तो स्वयं परमेश्वर का मंदिर है। Hallelujah. आमीन। Now let's start moving in boldness. सचमुच उस सामर्थ्य में, उस आजादी में चलना शुरू करें। Let's start walking in boldness. सचमुच उस आजादी में चलना शुरू करें। Let's walk out of your house and start walking in boldness in the mighty name of Jesus. अपने घर से निकल के उस आजादी में यीशु के नाम से चलना शुरू करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. The more you will walk in boldness, the more power you will get it in the name of risen power of Jesus Christ. जितना आप सामर्थ में चलेंगे, जितना आपके जीवन से भय चले जाएगा, यीशु का सामर्थ आपके जीवन में आ जाएगा और सचमुच आप आगे बढ़ते जाएंगे। Hallelujah. आमीन। The Lord might be thinking, don't you know that in 1 John chapter 4 and verse 4? परमेश्वर ये सोच रहे होंगे कि पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 4थे वचन। 4 अध्याय के 4थे वचन में यूं लिखा है, You belong to God क्या तू परमेश्वर का नहीं है? and you have already won a victory क्या तू जीत नहीं चुका है? because the spirit which lives in you is greater than the spirit who lives in the world. क्योंकि तेरे अंदर जो आत्मा है वो ज्यादा सामर्थी और ताकतवर है उस आत्मा से जो संसार में विराजमान है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So let us not allow the fear to work into our life. मेरे प्रियो, किसी भी परिस्थिति में डर की आत्मा और संकट की आत्मा को अपने जीवन में प्रवेश ना करने दें। Now listen very बड़े carefully. ध्यान से सुनिए। The Lord has told me, परमेश्वर ने, प्रभु ने मुझसे कहा है, tell them to receive the power. उन्हें आपको एक ही बात कहने कहा है कि आप उनके सामर्थ को, पराक्रमण को ग्रहण कीजिए। Receive the power. उनके सामर्थ को पा लीजिए। Hallelujah. हालेलुया। Now when you receive the power, जब आप उस सामर्थ को पाएंगे, don't ask my guidance, okay? मेरे अगुवाई की आवश्यकता के पीछे ना पड़े। Don't look for my direction, okay? मेरे मार्गदर्शन को ना देखें। God will guide you. स्वयं परमेश्वर आपको मार्गदर्शन देंगे। Power has been given to you. क्योंकि सामर्थ आपको दिया गया है। Hallelujah. हालेलुया। When power of God will come and touch your life, जब परमेश्वर का सामर्थ आपके जीवन को आके स्पर्श करेगा, in that power only God will guide you and God will give you direction. Hallelujah. उसी सामर्थ में परमेश्वर आके आपको मार्गदर्शन दिखाएंगे And move in that power and boldness. और सचमुच उस सामर्थ में पूरे आजादी के साथ चले। Hallelujah. हालेलुया। Sometimes people receive power कई बार लोग तो सामर्थ जरूर पाते हैं and they want to take some direction, whether it is right or wrong. और उसके बाद वो पूछने लगते हैं कि अरे कौन सा मार्गदर्शन सही है, दाहिने जाएं कि बाएं जाएं, No. कौन सा रास्ता पकड़े। Yes. हालेलुया। When you have received the power, जब आप उस सामर्थ को पाते हैं move in the power. और सामर्थ में चलिए And that power will flow in Jesus' name. और वो सामर्थ यीशु के नाम से Because बहेगा, that power is came from the Lord. क्योंकि ये सामर्थ स्वयं प्रभु यीशु से आता है। Praise the Lord. आमीन। Amen. आमीन। I'm feeling the power of God. Amen. मैं तो सचमुच उस सामर्थ को अपने जीवन में इसी वक्त महसूस करता Rama हूं। shokori baraba. ओरियांदारिमा शोकोंदिरी खंता रामा शेंदेरियांदा। Jacob याकूब returning to his hometown, अपने घर को जा रहा है, but he has a fear. लेकिन उसके अंदर एक डर है, He was distressed. वो संकट में है। What will happen? अब क्या होगा? What my brother will do? अब मेरा भाई मेरे साथ क्या करेगा? Whether the Lord is there with me or not. उसे ये चिंता होने लगी, क्या मेरे साथ मेरा परमेश्वर है या नहीं। He's praying for deliverance. और वो प्रार्थना करता है, प्रभु छुटकारा दे दे। But God is not giving deliverance. लेकिन परमेश्वर उसको छुटकारा कहाँ दे रहे But हैं। God is filling him with his power. लेकिन परमेश्वर स्वयं उसके जीवन में अपने सामर्थ को भरते जा रहे हैं। Praise the Lord. हालेलुया। Maybe you are going through this fear. हो सकता है आप भी अपने जीवन में एक डर से गुजर रहे हैं। Receive the Holy Spirit सचमुच पवित्र आत्मा को संपूर्ण रीति से पा in लीजिए। full measure. संपूर्ण रीति से पा लीजिए। In full measure. संपूर्ण रीति से पा लीजिए। Say, Lord, Holy Spirit, आप कहिए, प्रभु पवित्र आत्मा come into my life. मेरे जीवन में आ जाइए। I want your power. मैं आपके सामर्थ को पाना चाहता हूँ। I want your power. मैं आपके सामर्थ को पाना चाहता हूँ। Because my body is the temple of the Holy Ghost. क्योंकि मेरा शरीर तो सचमुच पवित्र आत्मा का मंदिर है। Praise the Lord. हालेलुया।
Church, कलीसिया, your body is the temple of the Holy Spirit. आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है। Just lift your hands and just say, fill me with your power. आप अपने हाथ को उठा के कहिए, प्रभु मुझे अपनी सामर्थ से भर दे। And when you will fill yourself with the power of the Lord, और जब आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे जाएंगे, you will speak in boldness. आप सामर्थ में बोलने लगेंगे, आजादी में बोलने लगेंगे। And when you will walk in your house, और जब आप अपने घरों में चलेंगे, you will speak in faith. आप विश्वास में कहेंगे, You will declare and decree in faith. आप सचमुच घोषणा करेंगे, आप हुक्मनामा देंगे विश्वास में। And you will pray for your job or for your business. It will flourish in the mighty name of Jesus. जब आप अपने नौकरियों के लिए, व्यवसाय के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो सचमुच उस उन्नति और तरक्की को देखेगा। And when you pray in power, you will say, open the door, and the door will be opened for you. जब आप सामर्थ में प्रार्थना करेंगे कि दरवाजा खुल जाए, तो आपके जीवन का वो दरवाजा खुल जाएगा। When you are filled in the power, जब आप सामर्थ से भर जाते हैं, God always wants you to focus in Him. Hallelujah. परमेश्वर एक ही चीज चाहते हैं कि आपका ध्यान, आपका केंद्र होना चाहिए संपूर्ण रीति से परमेश्वर पे। And your focus must be on the word of God. और आपका संपूर्ण जो आपका ध्यान है परमेश्वर के वचन के ऊपर होना चाहिए। Remember, God is watching your life. याद रखिए, आपके जीवन को परमेश्वर बहुत नजदीकता से देख रहे No हैं। harm will come to you. कोई भी हानि आपके पास ना आएगा। You will not be shamed. आप शर्मिंदा नहीं किए जाएंगे। He will not put you into shame. आपको वो शर्मिंदा नहीं होने But देंगे। you have to move in the power of the Holy लेकिन Ghost. आपको ये जरूरी है कि पवित्र आत्मा के सामर्थ में चलना है। That's why today He is going to fill you with the power of the Holy Ghost. इसी से वो आज आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरने जा रहे हैं। Because you are not overcoming those areas. Because you are not speaking in boldness. इसलिए भरने जा रहे हैं क्योंकि आप डर में हैं और आप सामर्थ्य में नहीं कार्य कर रहे हैं। एक बार मुंह खोल दीजिए। अपने मुख को खोल दीजिए। आपको लग रहा होगा पता नहीं ऐसे बोलने से गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा बोलने से नाश ना हो जाए, ऐसा बोलने से कहीं दुख ना हो जाए, कहीं अलग ना हो जाए। Oh hallelujah, praise the Lord. This is not the time to think about all those areas. It is the time to speak the word of the Lord. It is the time to speak in power. It is the time to walk in power. It is the time to walk in the grace of God in the name of Jesus. सचमुच ये समय है कि परमेश्वर की सामर्थ में, उसके अनुग्रह में, उसकी ताकत में, उसके आजादी में आप चले और बोल दे अपने मुखों से। हालेलुया, हालेलुया। विरोधी आपके अगेंस्ट में आ रहा है, बहुत सारी चीजों को लेकर आ रहा है, उसको एक ही बात का है, चुप कर यीशु के नाम से। हालेलुया जीसस। हालेलुया जीसस। हालेलुया, praise the Lord. हालेलुया, हालेलुया। Don't store the words of the world. Tell the words of the world. You stop it in the name of Jesus. संसार के वचनों को, संसार की बातों को अपने हृदय में ना भरे और ऐसी वचनों और बातों को कह दे निकल जा मेरे जीवन से। In the name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में Every chains must be broken in Jesus' name. हर एक बंधवाई यीशु के नाम से टूट जाए। Hallelujah. हालेलुया। Now listen. बड़े ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो। He received the dream of God. याकूब ने परमेश्वर के स्वप्न को पाया। He got the blessing of God. उसको परमेश्वर से स्वयं आशीष मिला। But when he was returning to home, लेकिन जब वो अपने परिवार के बीच में जाने लगा, a fear has came into his life. एक डर उसके अंदर आ गया That fear would have destroyed him. और वो डर उसको नाश कर देता। Hallelujah. हालेलुया। That fear has created two companies in his own family. और उसने इस डर की वजह से अपने ही परिवार को दो हिस्सों में, दो दलों में बांट दिया। And he started bribing his brother also. और वो उसको ये भी लगने लगा कि मुझे अपने भाई को कुछ घूस देना पड़ेगा बचने के लिए। And God is watching. और सब परमेश्वर देख रहा है कि याकूब क्या कर रहा है। Hallelujah. हालेलुया। And on that particular night, और उस खास रात को God came. स्वयं परमेश्वर स्वर्ग से उतर के चला आता And है। the whole night, और सारी रात it was a very powerful wrestling. Hallelujah. और याकूब स्वयं परमेश्वर के साथ उस युद्ध को करता है, यानी कि वहां पे इसी मल्ल युद्ध को करता है। Praise the Lord. हालेलुया। Whole night he touched him. वो सारी रात्रि परमेश्वर को छूता रहता है और परमेश्वर भी उसको छूता है। The Lord was touching him so much.
परमेश्वर उसको इतना ज्यादा स्पर्श करता है that he was filled in the power. और वो सचमुच परमेश्वर की सामर्थ से भर जाता है God has poured out so much of power in him, और परमेश्वर अपनी सारी सामर्थ को याकूब के अंदर भर देता है so that he will speak the word of God. ताकि वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को विश्वास में बोलने पाए। Praise the Lord. आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. He is ready to give you the power. परमेश्वर तैयार है, प्रभु यीशु तैयार है, पवित्र आत्मा तैयार है आपको सामर्थ्य देने के Are you ready लिए। to क्या receive? आप तैयार हैं? The Bible says, बाइबल कहती है when the Holy Spirit will come upon you, हालेलुया। बाइबल यूं कहती है जब पवित्र आत्मा तुझ पे आएगा you will be filled in the power. तू सामर्थ से भर जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Today we all have to be filled in the power of the Holy Spirit. आज ये जरूरी है मेरे प्रियो कि हम सचमुच पवित्र आत्मा के सामर्थ से भर जाए। Oh, hallelujah. हालेलुया। Are you ready to receive क्या that आप power? तैयार हैं उस सामर्थ को पाने के लिए So that the fear will go away from your life. ताकि वो डर आपके जीवन से निकल जाए, That power will go away from your life, which is creating two thoughts. ताकि वो सामर्थ आपके जीवन में जो दो विचारों को लेके आता है उसको निकाल दे। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. That distress must go in Jesus' वो name. संकट आपके जीवन से निकल के चला जाए। Praise the Lord. आमीन। Hallelujah. आमीन। The amazing part is that he was praying for deliverance, but God has not given him deliverance, but God has given him power. Hallelujah. अद्भुत बात यह है कि याकूब डर के मारे छुटकारे के लिए प्रार्थना करता है, परंतु परमेश्वर को कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं है। परमेश्वर स्वर्ग से आके सचमुच याकूब को स्पर्श करके अपनी सारी सामर्थ को याकूब के अंदर भर देता है। You know why he was praying for deliverance? आपको मालूम वो छुटकारे के लिए क्यों प्रार्थना कर रहा है? He's just trusting on him more than God. हालेलुया। वो अपनी सामर्थ पे ज्यादा विश्वास कर रहा है वरन स्वयं परमेश्वर के सामर्थ पे। Hallelujah. हालेलुया। We should not trust upon our own power, our own strength, but we must trust in Lord's strength, in Lord's power. मेरे प्रियो ये जरूरी है अगर आप मसीह यीशु की देह हैं और उनकी संतान हैं तो आप संपूर्ण रीति से सिर्फ प्रभु की सामर्थ में विश्वास करें, अपनी किसी भी ताकत और सामर्थ पे ना विश्वास करें। When you trust in your own strength, याद रखिए जब आप अपने सामर्थ और प्रोविजन पे विश्वास करते हैं you will make plans. तो आप अपनी योजना बनाते हैं, You will make plans. अपनी योजनाओं को बनाते हैं You will divide your thoughts. और अपने विचार के द्वारा हर एक चीजों को आप अलग करते चले जाते हैं। Amen. आमीन। And that's how you become weaker and weaker and went into distress and went into afraid. इस तरह से आप विश्वास में कमजोर होने लगते हैं और संकट में जाने लगते हैं और डर आपके अंदर भरता जाता है। But God, you are a child of God. लेकिन आप तो स्वयं परमेश्वर की संतान हैं The Lord loves you. और स्वयं प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं। God knows what to do in your life. प्रभु को मालूम है कि आपके जीवन में उनको क्या करना है। He knows how to fill you with His power. उनको मालूम है कि उन्हें किस तरह से अपने सामर्थ से आपको भरना है। His promise will never fail. याद रखिए उनके वायदे कभी नहीं आपके जीवन में खत्म होंगे। His promise will never fail. वो उनके वायदे आपको कभी हारने नहीं देंगे। His promise will never fail. सचमुच उनके वायदे जो आपके जीवन के लिए वो आपको कभी हारने नहीं देंगे। He will never put you to shame. वो आपको नहीं शर्मिंदा करेंगे। He will never put you to shame. वो आपको कभी शर्मिंदा नहीं होने देंगे। But His only one request is that you must not lead into fear and distress. उनकी एक ही आपसे गुजारिश है कि आप डर और संकट में ना जिएं। Hallelujah. हालेलुया। Walk in faith. विश्वास में चलिए। Walk in faith. विश्वास में चलिए। Walk in faith. सचमुच विश्वास में चलिए। Amen. आमीन। If your faith is weak, pray that God will strengthen your faith. मेरे प्रियो अगर आपको लगता है कि आपका विश्वास परमेश्वर में कमजोर है तो आप प्रभु यीशु से मांग लीजिए, वो आपको दे देंगे। And pray that God will increase your faith. और मांगिए, ये प्रार्थना कीजिए कि आपके विश्वास को वो और बढ़ाते जाएं। Praise the हम Lord. हारेंगे नहीं। Praise the Lord. हालेलुया। Receive more touch from the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के स्पर्श को आप अपने जीवन में लेते जाइए। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया।
हालेलुया। Because Jesus loves you. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। He will provide you job. वो सचमुच आपको नौकरी देंगे। He will provide good contacts in your वो business. आपके व्यवसाय में अच्छे लोगों का अच्छी चीजों को लाके देंगे। Your profession will be blessed. आप जिस भी क्षेत्र में कार्य करते हैं वो आशीषित होगा। Where there is nothing, He will get you something from that life, from that area. आपके जिस भी जीवन के क्षेत्र में कुछ भी नहीं है, परमेश्वर उस क्षेत्र में भी संपूर्णता और पूर्णता से भर देगा। Maybe you are saying everything is gone, my brother. हो सकता है आप ये कह सकते हैं कि मेरे भाई मेरा सब कुछ खत्म हो गया। My business is lost. आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा व्यवसाय भी खत्म हो गया। My saving is gone. मेरा जितना भी बचत का धन है वो खत्म हो गया। Don't worry. आप निराश ना हो। Do not be afraid. बिल्कुल भी ना डरें। Do not be afraid. आप ना डरें। God knows how to fill that savings. परमेश्वर को मालूम है कि आपके धन जो कम हो गए हैं उसको वो कैसे लाके पूर्ण कर दें। He knows how to get your orders. उनको मालूम है कि आपको नए व्यवसाय के कार्य आपको कैसे लाके दें। When you will come to Him, then only He will do it. ये तभी संभव है जब आप उनके नजदीक आएंगे, तभी ये पूर्ण होगा। When you are in the house of God, then only it will happen. जब भी आप परमेश्वर के भवन में मौजूद होंगे तभी ये संपूर्णता से पूर्ण होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Because of that fear, you are worrying and going into anxiety. याद रखिए मेरे प्रियो, आप डर की वजह से आप सचमुच उस संकट में, उस बेचैनी में आ गए हैं। You don't need deliverance. You need the power of the Holy याद Spirit. रखिए मेरे प्रियो, आपको छुटकारे की आवश्यकता नहीं, आपको सिर्फ परमेश्वर का सामर्थ चाहिए। Hallelujah. हालेलुया। Say everybody, I need the power of the Holy आप Ghost. कहिए कि मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। I need the power of the Holy Ghost. मुझे पवित्र आत्मा का सामर्थ चाहिए। I want to be filled with the power of the Holy मैं Ghost. पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरना चाहता हूँ। Today I am going to move in the power of the Holy मैं Ghost. सचमुच आज परमेश्वर की सामर्थ में चलना चाहता हूँ। Every depression will go in the name of Jesus. हर एक निराशा की आत्मा यीशु के नाम से निकल जाए। Every discouragement will go in the name of Jesus. हर एक उदासी की आत्मा आपके जीवन से निकल जाए। Every evil plans will go in the name of हर एक Jesus. शैतानी योजना आपके जीवन से निकल जाए। हर एक गुमराह करने वाली आत्मा यीशु के नाम से चली जाए। हालेलुया, हालेलुया। Every sickness spirit come out in the name of Jesus. हर एक बीमारी की आत्मा आपके जीवन से निकल जाए। Every adultery spirit come out in the name of हर एक Jesus. व्यभिचार की आत्मा आपके जीवन से निकल जाए। Every emotional spirit come out in the name of Jesus. हर एक भावनाओं से भरी हुई आत्मा आपके जीवन से निकल जाए। Oh, praise the Lord, hallelujah. Hallelujah. Every snakes and serpents will go out in the name of Jesus. हर एक सांप की आत्मा आपके जीवन से निकल जाए। Every evil visions will go in the name of Jesus. हर एक बुरे दर्शन आपके जीवन से निकल जाए। Every bad dream will go in the name of हर Jesus. एक खराब स्वप्न आपके जीवन से निकल जाए। Because now the Lord has released His Holy Spirit to come and dwell in your body. अब तो परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को आपके जीवन में भेज दिया है कि वो आपके शरीर में आके विराजमान हो जाए। Receive the power on your ले body. लीजिए परमेश्वर के सामर्थ को अपने शरीर में। Receive the power on your body. सचमुच उस सामर्थ को अपने शरीर में ले लीजिए। Receive the power on your spirit. अपने आत्मा में उस ताकत को और सामर्थ को ले लीजिए। Receive the Holy Ghost power in your spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ को अपने शरीर में ले लीजिए। Every scale will fall upon from your eyes. आपकी आंखों से हर एक वो जमी हुई परतें गिर जाएं। In the name of Jesus. यीशु के सामर्थी There नाम is में। power in the name of Jesus. वहाँ सामर्थ है प्रभु यीशु मसीह के There नाम is में। power in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में एक सामर्थ है। Every demonic holds will be broken in the name of Jesus. हर एक शैतानी ताकतें, हर एक शैतानी चीजें टूट जाए यीशु के Oh, नाम से। Shandala Mashikara. माखारे अंदोरा माखांदी He's breaking those powers which are coming against your life in the name of Jesus. वो हर एक सामर्थ्य को तोड़ रहा है जिसकी आवश्यकता आपके जीवन में नहीं है। Give your burden to Him. मेरे प्रियो, अपने बोझ को प्रभु यीशु को दे दीजिए। Praise the Lord. Praise the Lord। And come out of that fear. और उस डर से बाहर निकल Come जाइए। out of that distress. उस संकट से बाहर निकल आइए। Only by receiving the touch of the Holy Spirit. सचमुच पवित्र आत्मा के उस स्पर्श को पाने के साथ
Lift up your hands and say, Lord, touch me. आप अपने हाथ को उठा के कह दीजिए, प्रभु मुझे स्पर्श कर The लीजिए। Holy Spirit is telling me, पवित्र आत्मा मुझसे कह रहे हैं, I'm touching many. मैं बहुतों को स्पर्श कर रहा I'm हूँ, touching many. मैं बहुतों को स्पर्श कर रहा I'm हूँ, touching many. मैं बहुतों को स्पर्श कर रहा Receive हूँ। that power. सचमुच उस सामर्थ को ले Receive लीजिए, that power. उस सामर्थ को ले लीजिए। Are you ready to receive क्या the आप तैयार power? हैं उस सामर्थ को लेने Are के you ready to लिए? receive क्या the आप power? तैयार हैं उस सामर्थ को Are लेने you के ready to लिए? receive the क्या power? सचमुच उस सामर्थ को लेने के लिए आप तैयार I'm हैं? seeing the fire is falling मैं on देख you. सकता हूँ कि वो अग्नि आपके ऊपर आ रहा है। I see the fire of the Holy Ghost is coming upon your family. मैं देख सकता हूँ कि पवित्र आत्मा का वो अग्नि आपके परिवार के ऊपर Come on, उतर receive रहा the fire of the ले Holy लीजिए Ghost. उस अग्नि को, पवित्र आत्मा का जो Receive the है। fire of the Holy पवित्र Ghost. आत्मा के अग्नि को आप ले लीजिए। Receive the fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के अग्नि को आप ले लीजिए। Receive the fire of the Holy Ghost. पवित्र आत्मा के अग्नि को आप Receive ले the fire of the लीजिए। Holy Ghost. सचमुच पवित्र आत्मा के अग्नि को आप ले लीजिए। Receive the fire of the Holy पवित्र Ghost. आत्मा के अग्नि को ले लीजिए। Receive the fire of the Holy पवित्र Ghost. आत्मा के अग्नि को ले लीजिए। Receive the fire of the Holy Ghost. मशाहुंदर, पवित्र Receive आत्मा the के fire अग्नि of को the ले Holy लीजिए। Ghost. पवित्र Receive आत्मा the के fire of अग्नि the को ले Holy लीजिए। Ghost. ओ राबाशिया अंदारी मा खाचिरी मा शोंदोरी अखंदारा मा यहाशु अंदेरी मा ओला रबरी अंदीरी मा शोंदोरी Oh, Shabakote आला मा खरिया खेरी मा Father, I pray in शोंदोरी। the name of Jesus. पिता मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ। Those who are praying for their business, जो अपने व्यवसाय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, those who are praying for financial breakthrough, जो सचमुच धन के आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, those who are praying for children to be blessed, हालेलुया, जो प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके बच्चे आशीष को पाने पाएं, those who are praying for their wombs to be open, जो लोग ये प्रार्थना करते हैं कि उनके गर्भ खुल जाएं, those who are praying for a wonderful job, जो ये प्रार्थना कर रहे हैं कि उन्हें एक अच्छा नौकरी मिलने पाए, those who are praying that God will make a way, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में एक मार्ग को निकालेंगे, and those who are praying that the God will open a big door in their life, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि परमेश्वर उनके जीवन में एक बड़े मार्गों को खोल देंगे, and those who are praying that their loved ones will be saved, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके प्रियजन बचाए जाएं, and those who are praying that their lost ones will found. और जो लोग प्रार्थना करते हैं कि जो खो गए हैं वो सचमुच घर वापस आ जाए। Father, I pray in the name of मैं Jesus, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु के along नाम with से, every GRPC हर एक family, जीआरपीसी परिवार के साथ bless their talents, उनके जितने भी गुण हैं उन्हें आशीष दे दे, bless their pen, उनके कलमों को आशीष दे दे, bless their writings, उनके लिखने के कार्यों को आशीष दे दे, oh bless their job, उनके नौकरियों को आशीष दे bless दे, their orders, उनके हर एक ऑर्डर को आशीष दे दे, let new opportunity will come, उनके जीवन में नए अवसर आने पाए, oh let new things will come, नई चीजें उनके जीवन में होने पाए, God's power will come upon their life, उनके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ आने पाए, every sickness will disappear, हर एक बीमारियां उनके जीवन से चली जाएं, every evil plan will disappear, हर एक शैतानी योजनाएं उनके जीवन से निकल के चली जाएं, every fear will go in Jesus' हर name, एक डर उनके जीवन से निकल जाए, every distress will go in the name of हर एक Jesus, संकट उनके जीवन से निकल जाए, every pain will go in the name of हर Jesus, एक दर्द उनके जीवन से निकल जाए, every sorrowful heart will go in Jesus' हर name, एक दर्द से भरा हुआ हृदय उनके जीवन से निकल जाए, fill them with the joy of the Holy Spirit, उन्हें पवित्र आत्मा के आनंद से प्रभु तू भर दे, fill them with the power of the Lord, उन्हें पवित्र आत्मा तेरे सामर्थ से तू भर दे, fill them with the power of the Holy Ghost, पवित्र आत्मा तू अपने सामर्थ से उनको भर दे, touch them from head till the bottom, उनको सर से लेकर पांव तक तू स्पर्श कर ले, let they shall be filled in the Holy वो Ghost, सचमुच पवित्र आत्मा से भर जाए, in the mighty name of यीशु Jesus, के सामर्थी नाम में every GRPC हर family एक जीआरपीसी परिवार and के everyone जन, who is watching me हर एक जन जो मुझे देख रहा है, and receiving these prayers, मैं जो इन प्रार्थनाओं को ले रहा है, fill them with the Holy Ghost उन्हें power, पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप भर दे, fill them with the power of the Holy Ghost, उनको पवित्र आत्मा के सामर्थ से आप भर दे, every fear will come out in Jesus' हर एक name, डर उनके जीवन से यीशु के नाम से निकल let new जाए, opportunities I declare in Jesus' name. उनके जीवन में नए अवसर आए, मैं इस बात की घोषणा करता हूँ। Thank you, Lord Jesus, धन्यवाद प्रभु यीशु, for blessing them. उन्हें आशीष देने के लिए In Jesus' name, यीशु के सामर्थी नाम में I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। Amen. आमीन, आमीन, आमीन। God will bless you with new doors, सचमुच प्रभु आपको आशीष देंगे, नए दरवाजे के खुलने के आशीष, new revelations will come. नए प्रकाशन आपको अपने जीवन में मिलेंगे। Don't give up. आप हारे ना, New revelations will come up. सचमुच नया प्रकाशन, New doors will be open. नए दरवाजे आपके लिए खोले जाएंगे, You will be lifted high. आप ऊंचे पे उठाए जाएंगे, You will not come down, but you will be lifted आप high. नीचे नहीं आएंगे,
ऊंचे की ओर जाएंगे। You will be raised up. आप तरक्की और उन्नति को देखेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Turn around. सचमुच परिस्थितियां बदल जाएंगी। Turn around. परिस्थितियां बदल The जाएंगी। power of God is turning the things. परमेश्वर की सामर्थ हर एक परिस्थितियों को बदल रही है। In the name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में Everyone will say amen. हर लोग कहेंगे आमीन, 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 Amen. आमीन। I know that you are blessed by this word of God. मुझे मालूम है कि आप सचमुच परमेश्वर के वचनों से आशीषित हुए If you हैं। are going through fear or distress, सचमुच आप में से अगर कोई डर की आत्मा से या संकट से गुजर रहा है, you must pray to the Lord to fill him with power. आप परमेश्वर से ये प्रार्थना करें कि सचमुच प्रभु आप अपने सामर्थ से मुझे भर दीजिए। Invite the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को बुलाइए। And he said, Holy Spirit, come into my life आप कहिए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आ and जाइए fill me with your power. और कह दीजिए कि पवित्र आत्मा अपने सामर्थ से भर दीजिए। And in your body, Holy Spirit is there. जब आपके शरीर में पवित्र आत्मा होगा, No sickness will come to you. कोई बीमारियां नहीं आएंगी। You will breathe fresh air, आप एक अच्छा ताजा श्वास लेंगे। not the breath of the world. आप Hallelujah. संसार के श्वास को ना लेंगे, But you will breathe the power of the Holy Ghost. लेकिन आप श्वास लेंगे पवित्र आत्मा में। Fresh air, सचमुच ताजा हवा, fresh breath. ताजा श्वास, And that breath of the Holy Spirit will give you good health. और सचमुच पवित्र आत्मा का जो ताजा श्वास है आपको एक अच्छा स्वास्थ्य देगा। God bless you and Jesus loves you. प्रभु आपको आशीष दे और यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। Hallelujah. आमीन।